Hallelujah. 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 House of God family. Hallelujah. House of God family. You know, there is a reason why I'm calling ourselves as House of God family. क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि हम लोग हाउस ऑफ गॉड के परिवार क्यों मैं बोल रहा हूँ. You know, we are a family. क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं. And it's very, very important that we need to know how do we stay in a family. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कैसे इस परिवार में हमें निरंतर होना है करके. You know, when we come as a family, हम जब एक परिवार होने के नाते जब हम आते हैं, and when we stay in a family, और जब हम परिवार में रुके रहते हैं, all kinds of things happens in the family. और बहुत सारी चीजें परिवार में होती है. Anybody over here who can say there is nothing happening in my family? क्या कोई कह सकता है कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ बातें होती नहीं है? तू मैं doesn't happen in my family. कि या तू मैं मेरे परिवार में तो मेरी परिवार में तो नहीं होता. कोई कह सकता है ऐसा बात? No argument in my family. कि मेरे जो परिवार में है कोई झगड़े ऐसे कुछ नहीं होते करके. No misunderstanding in the family. कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता. कोई कह सकता है ऐसा? Anybody? If you're saying I need to lay hands on you and I pray for you. कोई नहीं है तो मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा आपके ऊपर. Because every family, क्योंकि हर एक परिवार में we have some of the other things. और कुछ ना कुछ परिवार में होता ही रहता है. You know, but because something happened, we don't leave the family and go out of the family. लेकिन कुछ परिवार में होने के वजह से मैं परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाता हूँ. Or I don't talk anything about my wife or anything about my husband or anything about my daughter or my son. अगर कुछ भी परिवार में हो जाए तो मैं मेरे अपने पति के, अपने पत्नी की, अपने बेटे, अपनी बेटी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलता हूँ. You know, we all have some of the other argument. और कुछ ना कुछ तो तोक झोंक तो होती रहती है. Especially when you have a daughter and a son in the house. और अगर आपकी घर पे एक बेटी अगर बेटा है तो. And especially when there is a tutu meme going on between the mother and the daughter. और जब दोनों माँ और बेटी के बीच में जब कुछ ऐसे अड़चने बात होती रहती है. You know, let me give me an example. When something happens in our family like this. मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ. मेरे परिवार में भी कुछ हुआ था. When something happened in my family like this. जब मेरे परिवार में जब ऐसा कुछ होता है. Between my wife and my daughter. और मेरी पत्नी और मेरी बेटी के बीच में. If I am over there, I am sitting over there. अगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो. You know, I start praying in tongues over there. और मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना मैं शुरू करता हूँ. And they suddenly all the four eyes comes on me. और जो चारों आंखें मेरे ऊपर आ जाती है फिर. It happens in the family. और ये परिवार में होता है. That doesn't mean that I have to leave the house and go out and I have to do. Oh, I don't want to get involved in this thing. और मुझे ये नहीं बोलना है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. मुझे इसके पीछे नहीं पड़ना अब इस बातों में. You know, I start praying in tongues. और मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा में. And all of a sudden that argument stop and all the eyes is on me over there. और जैसे ही वो जो झगड़ा रुक जाता है और जो दोनों की आंखें मेरे ऊपर होती है फिर. So I want to talk something that what happens in the family. और मैं कुछ आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि परिवार में क्या होता है. You know, if you remember what Pastor spoke last Sunday. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या अगर आपको याद है कि पासवान ने पिछले इतवार को क्या कहा था. You know, and about this thing, I was preparing a message about this thing. और इस बातों के पीछे मैं एक अपना मैसेज को मैं तैयार कर रहा था. And when I was in Uganda, और जब मैं युगांडा में था, you know, when I got a news about my mom और जब passing मुझे मेरी away, माँ के बारे में समाचार मुझे मिला, and after that, और उसके बाद, I was just thinking, और मैं सोच रहा था, and suddenly the Lord took me to this passage from Matthew chapter 18 verse 15. और फिर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मत्ती का 18 अध्याय उसका 15 वचन में मुझे लेके गया. You know, Pastor spoke about that thing yesterday on last Sunday. और पासवान में हमारे पासवान ने पिछले इतवार को ही इसके बारे में कुछ कहा था. And I was sitting over there. और मैं वहां बैठा हुआ and था. I said to myself. और मैंने अपने आप से कहा. This is a message for me and this is a message for the church. और ये मेरे लिए समाचार है और ये कलीसिया के लिए भी ये समाचार है. I don't know how many of you took that message. मैं नहीं जानता कितने लोगों ने प्रभु का वचन को लिया था. But let me tell you, church, this morning. लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ इस सुबह के वक्त कलीसिया. This was the message for each and every one of you and me. लेकिन हम सभी के लिए ये वचन आया था. You know, when the book of Matthew chapter 18. और मत्ती का 18वां अध्याय का हम देखेंगे. Verse 15. और उसका 15 वचन को He पढ़ेंगे. said, moreover, if your brother or sister shall trespass against you, go and tell him his fault. यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत
करके उसे समझा। Very important that is written between you and him alone. और लिखा है कि तू और उसके बीच में केवल, And if he shall hear you, अगर यदि वो तुझे सुनता you है have gained your brother. और कि तूने अपने भाई को पा लिया है। You know, there's another version that called Passion version says like और this. उसका दूसरा भी एक वर्जन है, उसको पैशन वर्जन कहते He हैं, said, if your fellow brother sin against you, कि अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध अगर पाप he करता said, है, you must go. लिखा है कि तुझे जाना है। See, very, very important. He said, you must go लिखा है कि तुझे जाना है to him privately. और आपको जाना है प्राइवेटली उसके साथ बात करने के लिए। Church, कलीसिया, as I said, in the family there is always a conflict. जैसे मैंने कहा कि हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है, You know, but it's very important. How do we resolve it? Very, very important. लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये है कि उस बातों को आप कैसे सुलझा देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण We बात should है। not become a Times of India, or we should not become a Republic TV. और हमें टाइम्स ऑफ इंडिया या तो रिपब्लिक ऑफ टीवी नहीं बनना, ये So that- समाचार सबको बांटे। That we can go and spread that thing anywhere and everywhere to everybody. और ये जो घर का जो समाचार है कि आप बाहर जाके सभी को बांट रहे हैं, But the Bible says over here, लेकिन पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है we should go privately and meet him or her. कि आपको प्राइवेटली उसके पास जाना और बात करना है। Very, very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। We are not here. We are not here to bring anybody down. और यहाँ पे हम किसी को नीचे खींचने के लिए नहीं आए हैं। We are not here to see that you are not good or I am not good. By the grace of God, we all are good in the God's sight. और मैं ये नहीं बोलना चाहता कि हम लोग ये ना बोले कि मैं ठीक नहीं है तुम ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु की करुणा से हम सभी लोग सही हैं। You know, there is something which I have learned in my life, और कुछ बातें मैंने अपने जीवन में सीखा है and I'm going to talk to you about that. और मैं उसके बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। You know, the church, जो कलीसिया है, which is you and I, जैसे आप और मैं, the church which is you and I, और जो कलीसिया जैसे आप और मैं हैं, we should be a non-gossiping zone people. कि हम लोग जो कुड़कुड़ाने वाले या तो चुगली करने वाले लोग नहीं बनना Yeah. चाहिए। We should be a non-gossiping zone people. और हम लोग जो चुगली करने वाले वैसे लोग ना बने। You know, sometimes we bring out this kind of a thing in front of people as if we are putting as a prayer to them. और हम कुछ बातों को ऐसे लोगों के सामने पेश करते हैं, ये बातें बता के जैसे कि हम प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं उनको। You know, we bring it in such a way. हम ऐसे उस बातों को रखते हैं लोगों के But सामने। church, we should understand one thing. कलीसिया होने के नाते एक बात को समझना When जरूरी we है, say something, what is my intention to say that thing? और ये बात समझना जरूरी है कि इसके पीछे मेरा क्या मकसद है ये बोलने का। All of are looking very angry on me. और Okay. आप लोग सब मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा I है know मुझे। this is a topic which is really very kind of a thing like whether to share it or not share it. और ये एक ऐसा विषय है कि मुझे भी लगता है कि मैं इसको आपके सामने बांटूं या ना बांटूं। And when I was preparing, a lot of things came into my mind. A lot of opposition also came. You know, they said if you have the verse, then only talk. If you don't have the verse, don't talk it. Okay? और जैसे मैं इसको तैयारी कर रहा था इस वचन को बांटने के लिए, ऐसे भी कहा गया कि अगर प्रभु का वचन तेरे पास है तो ही बांटना, नहीं तो मत बांटना। Yeah. But church, we should be that kind of a people. और हमें वैसे लोग बनना है, We should be a non-gossiping zone people actually. और हमें जो है जो चुगली करने वाले जो लोग वैसा नहीं बनना है। Imagine when you have a family of 4 people in your house. अब सोचिए कि 4 लोग हैं आपके परिवार में, And if there is a gossiping going on, और वहां पे कुछ तू मैं में कुछ बातें या तो चुगली कुछ चल रही हो रही है, you know, and your ear goes over there, और आपका कान वहां पे जाता सुनने के लिए, what will you do? आप क्या करेंगे? What will you do? आप क्या करेंगे? You don't run away. आप वहां से भागते तो नहीं है, You hear it. आप सुनते हैं, But when you hear it, लेकिन आप जब सुनते हैं, what is your response when you hear it is very, very important. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सुनने के बाद आप कैसे कार्यशीलता में उसको लेके आते You know, हैं। sometimes you go to a person, you know Frank and his wife is having so and so problem. You know, please, and at the end of the time you say, please pray for him. और वो बोलते हैं कि आपको पता हो फ्रैंक और उसकी पत्नी के बीच में कुछ अनबन है, लेकिन आप इसके लिए प्रार्थना करना इनके लिए। But when you say that thing, लेकिन जब आप इसको बोलते हैं, have you taken the permission of the Frank to tell to people to pray for me? क्या आपने उस फ्रैंक से अनुमति लिया था कि जो लोगों को बोलने के लिए कि मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं? We need to mind our words. और हमें बहुत ही
सचेत रहना है कि हमारे हर एक जो बोली हम जो बोलते हैं What words we use is very, very important. और जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तोल मोल के बोलना चाहिए। It can kill people, और लोगों को मार सकता है, it can destroy people. उनको पूरा तबाह कर सकता है। Maybe your intention is very right. हो सकता है कि जो आपका मकसद सही हो सकता है। Maybe your intention when you say there is a passion, there is a compassion for people, may your intention is very right. लेकिन आप जब बोलते हैं आपका मकसद सही है, शायद आप उसके बारे में सोचते हैं, अच्छी सोच रहे होंगे, But how the other people take that is very, very important. लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उस बात को कैसे लेता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। As I said, जैसे मैंने कहा we are not here to put anybody down और मैंने जैसे कहा कि हम एक दूसरों को यहाँ पे किसी को दबाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, because we are the follower of the Lord Jesus क्योंकि हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके पीछे होते हैं। Proverbs 16 verse 28 नीति वचन का 16वां अध्याय उसका 28वां वचन, says, a twisted person spreads rumors, a whispering gossip ruins good friendship. टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। It says, ruins good friends. लिखा है कि अच्छे परम मित्रों के बीच में, Yeah. You can ruin a good friend into your life. कि आप जो अपने परम मित्रों के बीच में भी फूट लेके आ सकते हैं। Church is a family. और परिवार, जो कलीसिया एक परिवार है, And when God looks to you and me, जब परमेश्वर हमारी और हमें He देखता है, looks to you and me as a family. हमारी और जब देखता है परिवार होने के नाते, And as a family, और एक परिवार होने के नाते, it's very, very important to take care of each other actually. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमको एक दूसरे को संभालना है, That's called a family. और उसको कहते हैं परिवार। That's the responsibility of not only one person, that's the responsibility of all the people in the church and in the family. और ये आपकी केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सभी लोगों की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार को हमें देखना है। So the one of the important thing, और एक उसमें से महत्वपूर्ण बात यह है, how we distinguish about this thing और इस बातों को हम लोग कैसे समझते हैं, of sharing information. कि हम इस बातों को कैसे लोगों के सामने रखते हैं। The first thing is, what is my intention? और ये पहला जो चीज है ये कि उसका पीछे मेरा मकसद क्या है, What is the goal behind it? और इसके पीछे मेरा योजना क्या है, Am I building what I am going to talk to other और people? क्या मैं इस बात को रख के किसी को मैं बढ़ाने जा रहा हूं या बनाने जा रहा हूं, Or am I going to do something which is going to look bad about that person? और हो सकती कि मैं जिस तरीके से इस बात को रखूंगा उस व्यक्ति का चरित्र के ऊपर कोई दाग न लगे। What is my intention when I talk to somebody about somebody? लेकिन मेरा मकसद क्या है जिसको मैं किसी के सामने उस व्यक्ति के बारे में बोलता हूं तो Listen to me. ध्यान से सुनिए। God spoke to me in Uganda when I was in Uganda, and I didn't know that pastor is going to talk about this thing last Sunday. और मैं युगांडा में था, मैं नहीं जानता था कि पासवा ने इस वचन के द्वारा बात किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। But I was sitting there and I said, if pastor tells me to give exaltation, I'm going to talk about this thing. और मैं वहां पे पीछे बैठा था, अगर मैं सोच रहा था अगर पासवान मुझे एक्सॉल्टेशन के लिए बोलेंगे तो मैं यही वचन बोलूंगा। You know? But church, कलीसिया, what is my intention when I talk? मेरा क्या मकसद है जब मैं बात करूं? Am I going to put this person down? क्या मैं इस व्यक्ति को नीचे गिरा दूं? Or am I going to tell about this person that he's a bad person? क्या मैं ये बोलूं कि ये दर्शाऊं कि ये व्यक्ति बुरा है? Or is my intention to lift him up, to encourage him and take him to the next और level? क्या ये मेरा मकसद ये है कि इस व्यक्ति को मैं वहां से उठा लूं और एक अच्छे स्थान पे रख दूं? Because when we spread rumors, लेकिन जब हम अफवाहों को फैलाते हैं, you know, we lose our friendship. और हम अपने जो मित्रता है उसको खो बैठते हैं। What is my intention? मेरा मकसद क्या है? So very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। What is my intention? मेरा मकसद क्या है इसके पीछे? In 2 Corinthians chapter 12, और दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय में verse लिखा है 20, और 20वां वचन, Paul tells it like this over here. पौलुस ऐसे कहता है, Paul lists the gossip as one of the sins he fears that he will find in the church in Corinth. He said, I fear that there may be discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, slander, gossip, arrogance and disorder. और लिखा है कि क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसे ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो।
Now, when you talk about the Corinthian church, जब हम कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में बात करते this हैं, was a very good church actually. और ये बहुत ही एक अच्छा और भली कलीसिया थी, But Paul is saying over here, लेकिन पौलुस यहाँ पे ऐसा कहता है, I fear lest when I come, I shall not find you such as I would, that I shall be found unto you such as of you would not, lest there be debates, envies, wrath, jealousy, gossiping, all these things in you. लिखा है कि क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। Church, कलीसिया, I'm not saying that we are a perfect church, मैं ये नहीं कर रहा था हम लोग सिद्ध और परिपूर्ण चर्च हैं, but we are on a way of perfection. लेकिन हम उस मार्ग में हैं जहां पे उत्तमता है। Hallelujah. हालेलुया। We are on a way of perfection. हम उस उत्तमता की जगह में खड़े There हैं। is nobody perfect. यहाँ पे कोई भी उत्तम नहीं है। In the book of Revelation, when John saw the revelation of seven church, all the seven church, all the churches had some or the other mistake. पौलुस का उसमें लिखा है, यूहन्ना का उसमें लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि प्रकटीकरण का जो किताब में कि जो 7 कलीसिया थे उसमें से कोई भी परफेक्ट नहीं था, All the churches had problems. और हर एक कलीसिया में कुछ ना कुछ समस्या थी। It's not because the church, because it is not because that something is wrong in the church. और ऐसा नहीं कि कुछ कमियां थी उस कलीसिया में, There was something wrong, और कुछ बातें गलत थी, but at the same time there was a time they were getting ready and they were preparing themselves to become a perfect church for the Lord Jesus लेकिन एक Christ. ऐसा भी समय था वो तैयार कर रहे थे अच्छे समय के लिए, सिद्ध होने के लिए भी। Let me talk to you about David. और मैं दाऊद के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। You know, when conflicts happen, जब झगड़े जब होते हैं, the first thing is that how should I bring that person down? और पहला बात होता है कि मैं उस व्यक्ति को कैसे खींच के नीचे लेके आऊं। मौका मिला चौका मारूंगा। How should I do that? मैं कैसे करूं? Let me give you an example of David. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं दाऊद के बारे में। David had an opportunity to kill Saul. और दाऊद के पास एक सुनहरा मौका था साउल को मारने के लिए। He had an opportunity. उसके पास एक सुनहरा मौका था। Everybody say David had a faith to kill Goliath. और लिखा है कि दाऊद के पास वो विश्वास था गोलियत को मारने का। But David had a faith not to kill Saul also. लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं दाऊद के पास सौल को मारने का भी विश्वास नहीं था, नहीं मारने का विश्वास था। David had a faith not to kill Saul. क्योंकि दाऊद के पास विश्वास नहीं था कि साउल को मारने के लिए। Everybody, we all talk about David having faith to kill Goliath. हम सब जानते हैं, हम लोग बात भी करते हैं कि दाऊद के पास विश्वास था गोलियत को मारने के But लिए। David had a faith not to kill Saul. लेकिन दाऊद के पास ये जो विश्वास था कि साउल को नहीं मारने The का। reason is that David knew that he was an anointed man of God. क्योंकि दाऊद जान चुका था कि जो साउल है वो अभिषिक्त व्यक्ति है परमेश्वर से। Listen to me. ध्यान से सुनिए। You and I, we have been chosen by God. और हम लोग और आप लोग परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं। Hallelujah. Hallelujah. You and I, we are chosen by God. हम लोग सब प्रभु से चुने हुए लोग We हैं। are not here to kill anybody, but we are here to encourage everybody and see the purpose of God fulfilled in his or her life. हम यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आए यहाँ पे, लेकिन उत्तेजित करने आए हैं ताकि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हो जाए। If David could have thought, "अरे मिल गया मेरे को, let me catch him and let me kill Saul," he could have done that at that time. दाऊद के पास पूरा मौका था कि सौल को पकड़ के मारने के लिए, वो कर सकता था ये। If you read in 1 Samuel chapter 24, you read the whole scripture, you see how David could have easily killed Saul over there. अगर आप पुराने नियम में पहला सैमुएल का 24वां अध्याय में पढ़ेंगे कि दाऊद के पास पूरा मौका था कि आसानी से वो साउल को मार सकता था, Very easily. बहुत आसानी से, But he didn't do that. लेकिन ऐसा नहीं किया। He had an opportunity. उसके पास पूरा मौका था, He didn't do that. लेकिन ऐसा नहीं किया। Let's use the opportunity to encourage people, to help people and see that the purpose of God fulfilled into their आइए lives. हमारे इस मौके को हम लोगों के बीच में ऐसा रखें ताकि हम उनको उस परिस्थिति से उठाए और उस योजना में लेके आए जो परमेश्वर के जो योजना उनके ऊपर रखते हैं। The same David, और वही दाऊद, when Saul died, जब साउल मरा, when you read the scripture in 2 Samuel chapter 1, और दूसरा सैमुएल का पहला किताब में लिखा है, the same David said,
anointed, we have lost an anointed man. और लिखा दाऊद कहता है कि एक अभिषिक्त व्यक्ति को हमने खो दिया। But before that, लेकिन उससे पहले, when Saul died, लेकिन जब साउल मरा, you know what did the Philistine did? और फिलिस्तीन ने क्या किया? The Bible says they cut his head और बाइबल में लिखा है कि फिलिस्तियों ने साउल का जो सर को धड़ से अलग कर दिया। Now listen to me. Saul was an anointed, okay? अब ध्यान से सुनिए कि जो साउल जो था अभिषेक व्यक्ति था, He did a lot of mistakes, उसने बहुत सारी गलतियां की, but the anointing of God was there on his life. लेकिन प्रभु का जो अभिषेक उसके ऊपर था। You know what happened? लेकिन आपको पता है क्या हुआ? When the Philistine cut his head, लेकिन जब फिलिस्तीन ने उनका सर को धड़ से they अलग took किया, his head उसके सर को पकड़ा and they did a parade in the whole city actually. और वो पूरे शहर में उस सर को लेके परेड करते रहे लोग। They did a parade in the whole city. और पूरे शहर में उस सर को लेके परेड करते रहे। Listen to me today. ध्यान से सुनिए, आज You and I, आप और हम लोग, we do a parade of people actually. हम भी कभी कभी ऐसे लोगों का परेड करते हैं। Yeah. Through our words. हमारे मुख से निकला हुआ शब्दों से, Through our words. हमारे मुख से निकला हुआ शब्दों से। More than the hoarding, the word of mouth is a good advertisement. और होर्डिंग से अच्छा है कि हम लोग जो जिस तरह से बोलते हैं सबको, वो बहुत बड़ा बात है। Saul was parading the whole city. सौल जो था उसका सर को पूरे शहर में उसका परेड करवाया गया, You know, in the whole city. पूरे शहर में। But what did David did? लेकिन दाऊद ने क्या किया पता है आपको? David could have said over there, लेकिन दाऊद ऐसा बोल सकता था, good happened. और वो बोल सकता है अच्छा हो गया, ऐसे ही होना चाहिए Good था, happened to him. अच्छा हुआ, ऐसे ही होना This चाहिए thing था, should have happened to him. और ये तो ऐसे ही होगा उसके No, साथ। no, no, no. David didn't do that thing. लेकिन दाऊद ने ऐसे नहीं किया। Imagine Saul was running to kill David. अब सोचिए कि साउल जो है दाऊद को मारने के पीछे He पड़ा could था, have spoken against Saul. He could have said so many things against Saul. But he knew the anointing of God upon Saul's life. चाहे तो दाऊद के पास पूरा मौका था उसके विरुद्ध बात करने के लिए, लेकिन दाऊद जानता था कि साउल के ऊपर प्रभु का अभिषेक है। You know, there was a man over there. और वहां पे एक व्यक्ति था, You know, we will read about him. हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी। You know, First Samuel chapter 31. और पहला सैमुएल का 31 को पढ़ेंगे, You know, verse 8. और उसका 8 को पढ़ेंगे। Yeah. And it came to pass on the next day when the Philistine came to strip the slain, and they found Saul and his 3 sons fallen in Mount Gilboa. And they cut off his head and stripped off his armor and sent into all the land of Philistine. That means they did a big parade of Saul, the anointed man of God, to publish it in the house of the idols and among the people. And they put his armor in the house of Ashur, and they fastened his body to the wall of Bethshem. And when the inhabitants of Jabez Gilead, you know, Jabez Gilead is the man who heard of that which the Philistine had done to Saul, all the valiant men arose and went all night and took the body of Saul and the body of his son from the wall of Bethshem and came to Jabez and burned them there. And they took their bones and buried them. Listen to me. ध्यान से सुनिए, Listen to me. ध्यान से सुनिए। You and I, we are supposed to bury our conflicts. और मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमें हमारा जो झगड़ा है उसको दफनाना चाहिए, Not to do parade of that. और उसके वजह से उसका परेड मत कीजिए। Something happened in my house. कुछ मेरे घर में भी हुआ। What I'm going to do? I'm going to parade and go and tell everybody about that thing. क्या मैं इस बात को सबको जाके बताता रहूंगा, इसका परेड निकालूंगा मैं? Hello, church. कलीसिया सुनिए, Am I going to be like the Philistine, taking the head of the Saul and parade the whole city and say, "This is what has और happened"? क्या मैं फिलिस्तीन जैसे बनूं कि उसने उसका सर को लिया और पूरे शहर में उसका परेड किया और बोला, देख मैंने ऐसे किया? No. नहीं, I'm going to take it और मैं लोन तो लूंगा, ले तो लूंगा, and I'm going to bury it. लेकिन मैं उसको दफना दूंगा। Church, कलीसिया, we need to watch what our words are. और हमें बहुत ही सतर्क रहना कि हम क्या बोलते हैं, We need to watch our words. और हमें बहुत सतर्क रहना, तोल मोल के बोलना है। It's only the devil who can do that thing what they did for the head of Saul. केवल शैतान ही कर सकता है, जैसे फिलिस्ती ने जो साउल का सर को किया। But the man of God from Jabez, the other man over there,
Jabez, yeah, the man over there, Jabez. What did he did? और जो जाबेज व्यक्ति था उसने क्या किया? He took their bones and he buried them. और लिखा है कि उसके शरीर को, साउल के शरीर को लिया और उसने दफना दिया। Only the devil wants to parade. केवल जो शैतान है वो ही सबका तमाशा बनाने के पीछे पड़ा है। You and I, आप और हम, God has called you and I by our name. परमेश्वर ने हम लोग को हमारे नाम से पुकारा है। You and I, we are not here to parade, but you and I are here to bury the conflict, bury the things which doesn't glorify God. और हमें यहाँ पे तमाशा बनाने के लिए नहीं चुने गए हैं। हम वो लोग हैं जो भी झगड़ा जो भी है उसको दफना दे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। Church, listen to me. कलीसिया मुझे Let it be सुनिए। in your personal family, in your family. जब ये मुश्किलें जब आपके परिवार में होती Let है, it be in the church family. हो सकता है ये हमारे कलीसिया के परिवार में Let हो, us not parade this thing into the whole place. और आए इसका तमाशा ना बने हर जगह। According to Matthew, go and talk to him. और मत्ती के अनुसार है कि आप जाके बात कीजिए You know, उनसे। if he doesn't listen, take one more person with you. अगर वो नहीं सुन रहा तो एक और बंदे को लेके जाइए Take another person with और you. एक और व्यक्ति को लेके जाइए। But in all this thing, लेकिन इन सभी बातों में, let us not do a parade of that person. लेकिन आए ऐसा ना हो कि शैतान उसके ऊपर हावी हो जाए, उसके ऊपर प्रभाव लेके आए। You know, in that, आपको पता है इसमें what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, we're bringing shame to the name of God. और हम जो प्रभु के जो नाम को निरादर कर रहे हैं, We're bringing a shame to the name of God. हम प्रभु के नाम को निरादर कर रहे हैं। We find a way. How should I see that I put this person down? हम मार्ग को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति को मैं कैसे गिरा दूं। If David could have thought like that, अगर दाऊद ऐसा सोच सकता था, we could have not have so many psalms today in the Bible. और शायद हमारे पास इतना भजन संहिता नहीं होता था आज। If David could have thought that way, अगर दाऊद उस समय ऐसा सोचा होता, what could have happened? और बहुत कुछ हो सकता। Listen to me, church. कलीसिया सुनिए मुझे, Listen to me. कलीसिया सुनिए मुझे। You know, we need to watch. We need to see what words we speak. और हमें ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं, What word we speak. हम कौन सा शब्द बोल रहे हैं। You know, how when we give a prayer request, are we giving a prayer request with the permission of that people जब हम ये who are प्रार्थना, going into a time of a problem into their lives? जब हम प्रार्थना के लिए रखते हैं किसी के पास, क्या हमने उस व्यक्ति से अनुमति लिया है कि इसको रखने के लिए? Or what is my intention when I say that thing? या तो मेरा मकसद इसके पीछे क्या है जब मैं ये बोलता हूँ। You know, sometimes if we want to put a person down, we get people along with us also and tell them the things that they can be with you and try to put that person down. और हम क्या करते हैं जब बोलते हैं, हम कुछ लोगों को भी साथ में ले लेते हैं जब इसके बारे में बात करते हैं। The Bible talks about take them privately, talk to them privately. लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब हम बात करेंगे प्राइवेटली बात करें। We should become a non-gossiping zone people. और हमें कभी भी जो गॉसिप ना करे वैसे लोग बनना चाहिए। You know, very important, how do you respond to the gossip? लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब ये गॉसिप होता है कि हम इसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। First thing is that, पहली बात ये है, very important, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, when you hear a gossip, जब इसके बारे में, चुगली के बारे में सुनते हैं, the first thing, पहली बात, if you want to get out of this thing, अगर आपको इससे बाहर निकलना है, stop hearing it actually. और आप सुनना बंद कीजिए। पहले Stop hearing it. आप उसको सुनना बंद कीजिए। हिंदी में कहावत है, तुम कुछ सुनोगे उसके अंदर मसाला डाल के और तुम बोलते जाओगे। Yeah. Stop listening. आप उसको सुनना बंद कीजिए। The moment somebody tells you, first thing, did that person tell you to tell to me? और जब ऐसा कोई व्यक्ति आके बोलता है तो आपको ये पूछना है, क्या उस व्यक्ति ने आपको बोला है मुझसे बात करने के लिए? That will definitely they will say no. और वो बोलने वाला नहीं। And when he says no, जब बोलेंगे नहीं, stop it there. आपको वहीं पे उनको रोक देना है। Stop it there. वहीं पे उनको रोक देना। Because once you stop, जब आप एक बार उनको रोक देते the हैं, person will never come again next time to you and talk to you. क्योंकि वो व्यक्ति आपके पास दोबारा नहीं आएगा ये सब बोलने के लिए।
Have a good relationship. और एक अच्छा रिश्ता तो है, Have a good relation. अच्छा Don't रिश्ता break तो the है। relation. उस रिश्ते को मत तोड़ो आप। It's very tough, yeah. ये मुश्किल तो है, But the moment you and I we stop, लेकिन आप और हम जब उसी वक्त जैसे उसको रोक देते हैं, or if you want to hear some good things or you want to enjoy everything, you keep on hearing the और gossip. अगर आपको कुछ सुनना है और अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, तो आप सुनते रहिए चुगली को। मजा आ रहा है. And you're making fun, I mean, you're just having good fun of it. Yeah, we are having a fun about what you're hearing actually. और जैसे आप सुनते हैं आपको बहुत मजा आ रहा है। The first thing is that I need to stop it. और पहला चीज है कि मुझे वहीं पे उसको रोक देना है। You know, as I said about a friend called Freddie and his wife, और मैंने जैसे कहा कि मैं एक दोस्त है फ्रेडी और उसकी पत्नी, you know, they had some problem उनके जीवन में कुछ परेशानी and थी somebody knew it. और उनके बारे में किसी को पता लगा। Instead of me going and gossiping about the whole thing, और इस बात को जान के किसी और को जाके चुगली करने से अच्छा my ये था first thing is that I should take it before the Lord rather than taking it to before the people. और मेरा पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि मैं इस बात को प्रभु के सामने दुआ में रखूं, हालांकि लोगों के सामने ना रखूं। You know, we put sometime request, like, you know, about a prayer actually, like a prayer. और कई बार हम लोग ना एक रिक्वेस्ट रखते हैं प्रार्थना का लोगों के बीच में, Do not get engaged into their stories. और उनके कहानियों में आप मत पड़े रहना, You know, do not get engaged into their आप stories. उनके कहानी में मत पड़े रहना, But instead, लेकिन get out of that. उससे बाहर निकल जाइए आप। Again, I said, we are not here to put anybody down. वापस मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं आए हैं। Yeah? We all are valuable in God's eyes. हम सभी लोग बहुत ही मूल्यवान हैं प्रभु के नजर में। How do I get out from this thing? और मैं इस चीजों से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ? The first thing is that पहली बात, we need to have the revelation of God in us. प्रभु का जो प्रकटीकरण है वो हमारे मन में, हमारे जीवन में होना चाहिए। Yeah, we had to revelation of God. और जो प्रकटीकरण है जो प्रभु का हमारे जीवन में होना चाहिए। Listen to me, church. कली से मुझसे When we सुनिए, get engaged with God हम जब प्रभु के साथ हो जाते and हैं when we get engaged to know Him, और जब उसको जानने की और कोशिश करते हैं, we get out of all this unknown, all these things which are not good actually. और हर चीजों से हम बाहर निकल जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, Because we are engaged with God. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ लगे रहते So हैं। the first thing that we need to have the revelation of God into our lives. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रभु का जो प्रकटीकरण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। You know, the revelation to know God or to uncover the things of God in my life. और प्रकटीकरण का मतलब यह है कि ऐसे जो चीजें जो उसकी जो चादर है वो निकल जाता है कि मैं प्रभु के योजना को समझ सकूं। You know, and God reveals Himself to you and me. और परमेश्वर हमें और आपको दर्शाता है, Through the revelation, He gives you and me the things we need to do. और उस प्रकटीकरण के द्वारा हमें वो दिखाता है, समझाता है कि हमें और आपको क्या करना है। You know, the Bible says in the scripture, 2 Timothy chapter 3 verse 16. और 2 तिमुथी का 3 अध्याय में लिखा है इसके बारे में, He said, all scripture are breathed out by God and profitable for teaching and reproof and correction and for training in righteousness, that a man of God may be completely equipped for every good work. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। You know, we can know God through an example of our Lord Jesus Christ. और हम प्रभु को नहीं जान सकते अगर प्रभु यीशु मसीह का अगर उदाहरण नहीं है तो। You know, Jesus is the one of the good example for you and और me. प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। Listen to me, God wants you and me to grow into His likeness, into His image, not anything else. प्रभु यही चाहता है कि हम लोग प्रभु के उस प्रभुता में आ जाएं, उसके इमेज में आए और किसी की चीजों में नहीं। And every area of your life and my life. और हर एक क्षेत्र जो आपके और मेरे जीवन का है। You know, we are not here to do the flesh work. We are here to do the work of the Spirit of God, by the Spirit of God. और यहाँ पे हम लोग मांस के काम के लिए नहीं आए यहाँ पे, लेकिन पवित्र जो आत्मा के काम के लिए आए हैं। You know, devil always wants you and me to do wrong. क्योंकि जो शैतान हमेशा उकसाएगा
गलत काम को करने के But लिए। if you and I, we have the revelation of God, we stick to God and start doing the will of God. और जब परमेश्वर का अगर प्रकटीकरण है तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा सही कामों को करने के लिए। The second thing, दूसरी बात, we need to have the revelation, the love of God. और दूसरी बात है कि परमेश्वर की प्रकटीकरण होना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। No matter how bad the person is, हो सकता है कि हालांकि वो व्यक्ति बहुत ही खराब हो सकता है, no matter how big sin that person or he or she has done it. हो सकता है वो व्यक्ति या लड़का या लड़की ने बहुत बड़ा पाप किया हो सकता But है, listen to me, लेकिन ध्यान से सुनिए, God loves him or her the way he loves you and me. परमेश्वर उस व्यक्ति से उतना ही प्रेम करता है जैसे हमसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Who are you and me to find a fault in somebody? हम और आप कौन है कि जो उसके बीच में हम लोग उनको दोष ठहराएं? You're not here and me to judge over anybody. हम यहाँ पे किसी के ऊपर न्याय करने के लिए नहीं आए हैं। If you are here and you and I, we are here to judge, buddy, then we don't need God at all into our lives. अगर हम लोग अगर न्यायाधीश बने तो हमें परमेश्वर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। We need to have revelation of love of God. और परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है उसका प्रेम का वो होना जरूरी है। We need to have it into our lives. हमारे जीवन में ये होना जरूरी है। Titus chapter 3 verse 4 and 5. टाइटस का 3रा अध्याय उसका 4था और 5वां वचन। Church, let me tell you something. कलीसिया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। We are here on more than 100 and 180 people over here. और करीबन 100 या 180 लोगों के ऊपर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। Can I say something? मैं कुछ कह सकता हूं आपसे? All who are sitting over here, सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, no one is your enemy. और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। I don't know whether you believe or not. मैं नहीं जानता कि आप मुझे विश्वास करते हैं कि नहीं। No one is the enemy of each other. और कोई भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। You know who's our enemy? आपको पता है हमारा दुश्मन कौन है? Only the devil. केवल शैतान है। Only the devil. केवल शैतान है। Then why should we have this conflict among us? और फिर ये जो झगड़े हमारे बीच में क्यों होता है? Why should we have this talks about some people in us? और क्यों कुछ किसी और के बारे में हमारे बीच में बातें होती रहती है? Before the salvation, और उद्धार से पहले we were enemies of God. हम परमेश्वर के ही दुश्मन थे। But when we are born again, लेकिन जब हमने पुनर्जन्म लिया, only Satan, the devil, is our enemy. केवल शैतान ही हमारा दुश्मन है। Not your neighbor, हमारा पड़ोसी नहीं, not your husband, आपकी पति नहीं, not your wife, आपकी पत्नी नहीं, not your children. आपके बच्चे नहीं, How many trouble your daughter gives you? और कितने भी आपकी जो परेशानी आपकी बेटी दे रही होगी, At the end of the day, she is your and your daughter, your and your son only. और दिन के अंत में केवल वो आप ही की बेटी है, आप ही का ही बेटा है वो। We have only one enemy, remember that. आप याद रखिए, केवल हमारा एक ही दुश्मन है, That's the devil. वो है शैतान। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, We love God. हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं, God loves people. और परमेश्वर लोगों से प्रेम करता You है, and I, we should love people. और हम भी लोगों से प्रेम करने वाले लोग होना चाहिए। Church, let me tell you something. कल से आपसे मैं कुछ कहना चाहता When हूँ। I go to Uganda, जब मैं उगांडा गया था, I'm telling you, if you come with me, you will say how you stay, pastor, over here. और अगर आप मेरे साथ आएंगे, आप बोलेंगे पासवान आप कैसे रहते हैं यहाँ पे? When I came back from Uganda, I almost lost more than 7 kgs, 7 to 8 kgs. और जब मैं उगांडा से वापस घर पे आया तो मैंने करीबन 7 केजी में अपना खो चुका I था। was in the airport after 1.5 hours, I used to go to the washroom. और मुझे हमेशा 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे ना हमेशा वॉशरूम जाना ही पड़ता I was था, so sick at this time. और मैं बीमार पड़ गया था, Very sick this time. और इस वक्त मैं बहुत ही बीमार पड़ गया You था। know, in my mind, I was thinking always, am I going to reach home? और मैं हमेशा अपने मन में सोचता, क्या मैं घर पहुंच पाऊंगा? I'm sitting in a launch, every 1.5 hours, I have to go to the toilet, I have to come out, and I'm feeling so weak inside of me. और मैं जब भी लॉन्च में बैठा रहता, हर 1-1.5 घंटे मेरे को शौचालय में जाना पड़ता था, और मैं बहुत ही कमजोर महसूस I कर was रहा था, vomiting over there, और मैं उल्टी कर and I रहा was था, having high fever over there. और मुझे बहुत ही बड़ा बुखार था मुझे। For some time, it felt, God, why do you bring me to Uganda? और मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों लेके आए युगांडा में? God loves that people. लेकिन परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं।
They are not my enemies. और वो मेरे दुश्मन नहीं है। Nobody is your enemy in the church over here. आपके भी कोई शत्रु नहीं है इस कलीसिया में, Nobody. कोई भी नहीं। We all are the sons of God. हम सभी लोग परमेश्वर के संतान We all हैं। are the daughters of God. हम सभी लोग परमेश्वर की We पुत्रियां are a हैं। family. ये एक परिवार है। Hallelujah. We are a family. हम एक परिवार हैं। So the revelation, the second thing, revelation, the love of God. और प्रकटीकरण जो दूसरी बात है कि परमेश्वर का प्रेम। The third thing, तीसरी बात, you and I, we have the responsibility to love each other. और आपको और हमारा जिम्मेदारी है कि एक दूसरे से प्रेम करना। We have to love each other. हमको एक दूसरे से प्रेम करना In है। spite of you coming from any background, हो सकता है कि आप दूसरे प्रांत से आते होंगे, you may, in spite of if you are coming from any religion, हो सकता है कि दूसरे आप एक अलग रिलीजन से आते from होंगे, anywhere you are coming. आप कहीं से भी क्यों ना When आते you होंगे। and I, we are born again, we have the salvation of God in us. अगर हम लोग ने पुनर्जन्म लिया है, अगर हमने उद्धार पाया है तो, So it's your responsibility and my responsibility to love each other. और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है एक दूसरे से प्रेम रखना। You know, Matthew chapter 22 verse 37, it talks about like this. और मत्ती का 22 में लिखा है और 37 वचन में लिखा है, You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And second is equally important, love your neighbor as you love yourself. और लिखा है कि अपने परमेश्वर के पूरे तन मन पूरे हृदय से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से भी वैसा ही प्रेम रखना। And love your neighbor as you love yourself. और अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करना जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। Church, कलीसिया, how much we love you, we need to love our neighbors also. और जिस तरह से आप अपने आप से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसियों से We भी प्रेम need करना to है, love our enemies also. और हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। Very difficult, no? बहुत ही मुश्किल है ना। उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, how should I love him? And the person has spoken about me, how can I forgive him? She told so many things about me. He told so many things. How should I love him? और उस व्यक्ति ने मेरे बारे में इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ कह दिया, मैं कैसे उससे प्रेम कर सकता हूँ। Church, imagine if Jesus could have said like to you about आप you and me. सोचिए कलीसिया कि अगर यीशु मसीह ने इसे कहा होता About you and me. मेरे और आपके बारे में, We did so many things against God, और हमने बहुत कुछ परमेश्वर के विरुद्ध किया है, but still He loves you and me. लेकिन फिर भी हमसे प्रेम करते हैं। Did He said you did something? I am not going to love you. और कहा है कि आपने मेरे लिए ऐसे किया तो क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा? No. नहीं। We need to love each other. और हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। Fourth thing, चौथी बात, you and I, we are not here to judge anybody. और आप और हम यहाँ पे कोई न्याय के लिए नहीं आए हैं। No, we are not here to judge anybody. हम किसी के लिए न्याय करवाने के लिए नहीं आए हैं। We are here to love. हम यहाँ पे प्रेम करने के लिए आए हैं, Let God judge it. लेकिन परमेश्वर न्याय करने दो। We are here to correct. हम यहाँ पे सही करवाने के लिए आए See हैं। something goes wrong, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज सही नहीं, उसको ठीक करना है, we correct. हम उसको ठीक करवाने की कोशिश करते But हैं। if you listen, अगर आप सुनते हैं, it's good. अच्छी बात है, Let God judge it. लेकिन केवल परमेश्वर उसके न्याय लेके आए। God has kept in the church pastors and leaders, so for correction, so for your good and my good. कलीसिया में पासवान और अगुवाओं को इसीलिए रखा ताकि वो हम दोनों को सुधारने की कोशिश कर सकें। But if you and I, we don't take it, अगर हम नहीं सुनते हैं, अगर उस बात को अगर हम नहीं लेते हैं, जब गलती करते हैं तो, pastor and leaders are not going to lose anything. और पासवान जो अगुवे हैं उनका कुछ नुकसान होने You are वाला going नहीं to है, lose it. लेकिन आपका नुकसान होने वाला है। Understanding that what we speak against somebody is the work of the flesh. और आप याद रखें कि किसी के बारे में कुछ विरुद्ध बोलना वो केवल मांस का काम है, Yeah, it is not the work of the Spirit of God. और ये परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं है ये, It is the work of the flesh. और ये जो है मांस का काम है, देह का काम है, It is not the work of the Spirit. और ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। Because it's the devil who wants to destroy. क्योंकि वो शैतान है जो सब कुछ तबाह करना चाहता है। Because talking against anybody is always not about righteousness. और जब भी हम किसी के बारे में विरुद्ध बोलते हैं, वो धार्मिकता को नहीं दर्शाता है। Psalms 101 verse 5, it says like this: I will destroy anyone who secretly slander his neighbor. I cannot tolerate anyone with haughty eyes or arrogant heart. जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए और उसको मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और उसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सुनूंगा, सहूंगा।
Your word and my word, we should know whether it's going to build a person or going to destroy a person. और आपका यार हमारा आपका और मेरा वचन क्या किसी को बनाने के लिए तैयार करने के लिए या तो उसको बिगाड़ने के लिए उसको बर्बाद करने के लिए है। God has not come to destroy anybody, to build each and every one of us. और परमेश्वर यहाँ पे हमें किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आए लेकिन बनाने के लिए आए हैं। So that should be your goal and my goal also. और यही जो गोल है आपका और मेरा होना चाहिए। We need to repent और हमें पश्चाताप करना है about wrong saying or wrong doing about anybody. और जो हम लोगों ने गलत किया है जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें पश्चाताप Or करना we have said wrong things about anybody. है। और अगर हमने किसी के बारे में गलत कहा है किसी के लिए We need to repent. हमें पश्चाताप करना है। Because let me tell you one thing, gossiping is a sin actually. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चुगली जो है वो एक पाप है Repentance will bring a change of life and a change of heart into you and me. और पश्चाताप है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा आपके और मेरे हृदय में। We need to repent about this thing. हमें पश्चाताप करना है इस बात को The लेकर। Bible says if we confess our sin, He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम लोग इस बात का मानते हैं कि हमने पाप किया तो वो धर्मी है परमेश्वर जो हमारे पापों को क्षमा करता है। Hallelujah. Church, कलीसिया, your word must have destroyed somebody's life. हो सकता है कि आपका जो वचन है किसी के जीवन को तितर बितर कर दिया होगा। Maybe your word must have built somebody's life. Praise God for that. हो सकता है कि आपका बोलने से किसी का जीवन में अच्छा भी हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड। But लेकिन there is somebody's life which is destroyed also. लेकिन किसी का जीवन को भी बर्बाद भी किया है आपके शब्दों ने। We need to ask God. We need to repent God before that. और आपको हमें उस बात का पश्चाताप करना है परमेश्वर के सामने। The Bible says in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. और दूसरा इतिहास में 7:14. 7वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा He है। said, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी हो कर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों को त्यों कर दूंगा। Church, कलीसिया, repentance is very important. पश्चाताप बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yeah. We need to acknowledge, yes, I have done a mistake. और इस बात को मानना जरूरी है कि हाँ मैंने गलती की है। If we don't if I don't accept my mistake, if I don't accept my mistake, अगर मैं ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने गलती की है, God is not there to forgive you and me. God will not forgive you and me. और परमेश्वर हमें और आपको माफ नहीं कर सकता। But you and I, we need to ask forgiveness. We need to repent. Yes, I have done a mistake. और लेकिन परमेश्वर के सामने ये बोलना है कि हाँ मैंने ये गलती की है, God forgive me. कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो। There is one step ahead we can go. और एक और कदम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Ask forgiveness from God. परमेश्वर से माफी मांगिए And if possible, अगर हो सके तो go to the person privately, talk to him, meet him, ask forgiveness from him or her उस also. व्यक्ति से जाके प्राइवेटली मिलना, माफी मांगना, जो कर सकते हैं आप कीजिए। The last one, और अंतिम बात, pray for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। Pray for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। When we talk about somebody, we never pray for them. हम जैसे किसी के लिए प्रार्थना बात करते लेकिन उनके लिए प्रार्थना नहीं करते We हैं। talk against somebody, we don't pray for them. हम किसी के विरुद्ध में बातें तो करते लेकिन प्रार्थना कभी नहीं करते। You know, we keep on talking and talking and talking and talking quite a lot of time. और हम But लोग let's forget that and let's pray for that हम person. बातें करते इतना बात करते लेकिन हम उनके लिए कभी दुआ नहीं करते। You're helping that person by praying for him. और आप उस व्यक्ति का मदद करते हैं उसके लिए प्रार्थना करके। When you pray for a person, you help them. आप जब उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं आप उसकी मदद कर रहे हो। And when you don't pray for the person, you don't help them. और जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो। I went through quite a lot of things into my life. और मैंने काफी चीज अपने जीवन में देखा है। Yeah, a lot of rejection. और नकारता मैंने काफी कुछ देखा है, मैंने सहा है ये सब You चीज। know, I went through quite a lot of
People abandoned me, people left me, quite a lot of things into my life. और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे बातों को देखा कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया, ऐसे सब काफी बातें But, हुई है। but I will tell you, God has helped me to overcome this thing slowly, slowly. लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी मदद की इस चीज से उभरने के लिए, इस चीज से बाहर आने के लिए धीरे धीरे। I'm not saying I'm a perfect man. मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं संपूर्ण रीति एक सिद्ध व्यक्ति हूँ। You know, I have also spoken against people many times in my life. और मैंने भी अपने जीवन में काफी बार लोगों के विरुद्ध बात किया है। But when I came to know, लेकिन जब ये बात समझ में आ I गई repented मुझे, before the Lord. और मैंने प्रभु के सामने रखा, And I repented before the Lord. और मैंने प्रभु के सामने पश्चाताप किया। Church, कलीसिया, do you want to be a non-gossiping zone people? क्या आपको ना चुगली करने वाले लोग बनना है? I say house of God family. मैंने कहा कि हाउस ऑफ गॉड परिवार, House of God family. हाउस ऑफ गॉड परिवार। That doesn't mean that there won't be a conflict in the church. मैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी तनाव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कलीसिया There में। will be. होगा। But the Bible says go and talk to personally to that person. लिखा है कि, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है जाके उस व्यक्ति से आप बात कीजिए। Yeah. If not listening, take somebody with you. अगर वो व्यक्ति नहीं सुन रहा, दूसरे व्यक्ति को भी लेके In जाइए। a church condition, take the leader of the church, take the pastor of the church. हो सकता तो आप अगुवे को लेके जाइए, पासवान को लेके जाइए। Yes. Resolve it. Resolve it. और हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। If anybody comes and talk to you, I don't want to listen. अगर कोई आके बात करता, चुगली करता, बोलना मुझे नहीं सुनना भी, I don't want to listen. मुझे नहीं सुनना भी। I am learning that, okay? और मैं ये सीख रहा हूँ। It is hard. ये बहुत ही मुश्किल है। People get upset. लोग नाराज हो जाएंगे, People get upset. लोग नाराज हो I जाएंगे, am happy they are getting upset. और मैं खुश हूं कि वो नाराज हो रहे हैं। Because you don't want to listen like to what I am saying. क्योंकि मुझे नहीं सुनना जो बोल रहा है वो। Why you don't want to listen what I am saying? आपको क्यों नहीं सुनना मैं जो Do you बोल think रहा I am saying something wrong? हूँ? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? Hello. I'm not saying you're saying something wrong. मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत कह रहे हैं, I don't want to listen. लेकिन मुझे नहीं सुनना। As we come before the Lord's table, जैसे प्रभु भोज में आते हैं, let's all stand up before the Lord. आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। As we come before the Lord's table, हम जैसे प्रभु भोज में आते हैं, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As every eyes is closed, आइए हम अपनी आंखों को बंद कर दें। as we come before the Lord's table this morning, this afternoon, आइए जैसे प्रभु की उपस्थिति में आते हैं इस प्रभु भोज में, if you and I, if we have spoken against anybody, अगर हम किसी के विरोध में कुछ बातचीत किए हैं किसी से, let's repent about it. आइए उस चीजों को लेके हम अनुताप करें। Let's repent. आइए हम अनुताप करें मन में, Say, God forgive me. कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, God forgive me. प्रभु तू मुझे क्षमा कर, Lord, I have spoken against so and so person. कि प्रभु मैं किसी लोगों के बारे में कुछ विरोध में कहा हूँ। Maybe your intention was right or good actually. शायद मेरा मन में वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहा हूँ। My intention maybe it was right. शायद मेरा जो मन में जो विचार था वो शुद्ध था, But Lord, this have hurt that person. लेकिन प्रभु मेरी बातचीत उस इंसान को दर्द पहुंचाया है। Lord, प्रभु जी forgive me. कि तू मुझे क्षमा कर। Maybe you have hurt your wife or maybe you have hurt your husband. शायद अब अपनी पत्नी हो या अपने पति को भी शायद अब दर्द पहुंचाए हो। Maybe as a parents you have hurt your daughter or hurt your son. या तो अब माँ बाप के तौर पे अपनी बेटी या बेटा को अब दर्द पहुंचाए हो। God forgive us. कि प्रभु से कहें कि प्रभु आज मैं अनुताप करता हूँ, मुझे क्षमा कर। As we come before the Lord's table this morning, आइए जैसे हम प्रभु भोज की उपस्थिति में आते हैं, church, I want to give this opportunity to you. कि कलीसिया इस मौका को आप ना गवाएं। Before we partake into this bread and this wine, इस भोज में हम भागीदारी होने से पहले,
You know, as the bread comes to you, जिस तरह से रोटी आपके पास जब आएगी, if you feel अगर आपको ऐसा लगता है you need to go to somebody, pray for him and bless him, कि आपको ऐसा फील होता है कि अब मैं उस इंसान के पास जाऊं, उसके लिए प्रार्थना करूं, I would give this opportunity to go and do that. और ये मौका हम आपको देना चाहते हैं, आप जाके उनसे प्रार्थना कर सकते हो। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. We love God. We need to love people also. जिस तरह से हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हम अपने भाई बहनों से भी प्रेम करना Remember चाहिए। that there is only one enemy of yours and mine. That's the devil. Nobody else in the world. और याद रखो, अगर हमारी कोई एक शत्रु है, वो शत्रु सिर्फ शैतान है और कोई नहीं है। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, in Jesus' name, oh God, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से we want to thank you for this time. हम धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए। Lord, we want to thank you for you are the God of our lives. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हो। Lord, I want to thank you for your goodness, your grace, your forgiveness upon our lives, oh God. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका जो अनुग्रह है, प्रभु आपका जो वो अनुताप का जो अनुग्रह है हम पे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, God, that you made us into your likeness and to your image, oh God. प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आप जैसा बनाए हो प्रभु, That there was nothing in us, oh God, when you made us, oh God. कि प्रभु हमारे पास हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो आपने नहीं बनाया। Father, we pray this time, प्रभु हम इस वक्त प्रार्थना करते as हैं, we partake into this bread and then partake into this wine, प्रभु जिस तरह से इस रोटी और दाखरस में हम भागे ले रहे हैं प्रभु, we pray, oh God, that you may bless it to us, oh God. हम प्रार्थना करते हैं कि इस रोटी और द्राक्षरस को आशीष कर, We bless it, oh God. Let your healing power move into our body as we partake into it, oh God. प्रभु इस रोटी द्राक्षरस को जिस तरह से हम लेंगे प्रभु, आपकी वो चंगाई की सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहे। Father, we pray in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Every करते हैं, hurt be, every wound be healed as we partake into this bread, oh God. प्रभु जिस तरह से प्रभु भोज में हम भाग ले रहे हैं प्रभु, इस रोटी और द्राक्षरस के तहत प्रभु हमारे शरीर में अगर कोई भी घाव है, कहीं भी दर्द है, वो सब चंगाई पाए। Let this cup, oh God, Lord, which is the blood which you shed on the Calvary for the remission of our sin, oh God. कि प्रभु आपने लहू बहाया उस क्रूस पे हमारे पाप के लिए, We thank you, Father. और हम धन्यवाद देते We हैं give उसके you लिए। glory, honor, and praise, oh God. हम आपको सारा महिमा देते हैं प्रभु जी। In Jesus' holy name we pray. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।
बढ़ती हुई